Yeah, beta. Okay. Now listen. After the concentration terms, we have to deal with stoichiometric equation or reactions, right? Now, what is a stoichiometric reaction? Standard stoichiometric chemical reaction. What do you mean by standard stoichiometric chemical reactions? का मतलब क्या होता है? For example, मैंने क्या किया? ग्लूकोज C6H12O6 solid, right? उसको मैंने burn किया in the presence of oxygen gas, and that carbon will become 6 moles of carbon dioxide gas, and yeah, I'll be getting 6 moles of H2O liquid. Okay. Now listen. This is a particular chemical reaction, right? Now, first and foremost thing, what is standard stoichiometric chemical reaction? ये जो चीज होती है ना, हाँ जी, बोलो. रिएक्शन एक बार वापस रिपीट कर सकते हो? कौन सा? सर जो आपने रिएक्शन से पहले कुछ आपने बोला क्या? नहीं, वो कनेक्शन का थोड़ा इश्यू आ रहा था मेरा, इसलिए. नहीं बोला नहीं सर, ये लिखिए रिएक्शन, अरे बोलूंगा, ठीक है. मैंने बोला कि 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 6 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल वाटर देता है, राइट? ये एक बैलेंस रिएक्शन है. नाउ अंडरस्टैंड दैट एक स्टैंडर्ड स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन क्या होती है? इट इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन. पहली चीज, ये तुमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप देती है. But it'll exactly give you that 1 mole of C6H12O6 will react with 6 moles of oxygen to give 6 moles of carbon dioxide and 6 moles of water liquid. So it does tell you the relationship between the number of moles of reactant and number of moles of product. Getting a point? Second thing, it also represents the actual physical state of reactant and product. Reactant और product का physical state भी define करता है. Getting it? So it is a standard chemical reaction. The reaction which gives the relationship between the number of moles of reactant and product, relationship between the number of moles of reactant and product, and also will specify in what or in which physical state, reactants and products are involved. Are you getting my point? Guys, understood? Yes, sir. Very good. इसको लिख लो. I'll just take water and come. Done, sir. Very good. Sir, then the given reaction is standard stoichiometric reaction, ना? हाँ. तो जो भी बैलेंस रिएक्शन होगा जिसमें स्टेट्स मेंशन्ड होंगी वो एक स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन होगा. ओके सर. स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी वो. डन? Yes, sir. हाँ बेटा बोलो. सर वो डेफिनेशन में लास्ट वर्ड क्या लिखा है? इन्वॉल्व. थैंक यू. हाँ.
What is going on this? सर कोई स्टूडेंट स्क्रीन शेयर कर रहा है. And that is not allowed. सर आप वो डिसेबल कर सकते हो मतलब. देख ही रहा हूँ, वही देख रहा हूँ बेटा. सर आपकी कहीं सेटिंग्स में होगा वो. डन किया, डन किया. चलो, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी कहते हैं ना. हाँ बेटा, ये रिलेशनशिप होता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स नहीं होता है, राइट? इट्स हाँ जस्ट सर. रिलेशनशिप. ओके, कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चंस पे. लिसन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव टू सॉल्व टुडे, राइट? अलग अलग तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने. पहला मास मास रिलेशनशिप. मास मास रिलेशनशिप. देखो, कोई भी रिलेशनशिप सॉल्व करने से पहले ना तुम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो तुम्हारी रिएक्शन है ना, बैलेंस है. तो थिंग्स टू रिमेंबर फर्स्ट. Things to remember while solving any question. First thing is, check the reaction and ensure that it is balanced. वो बैलेंस होनी चाहिए, राइट? दूसरा, write down the molecular masses for all reactant and product. 2-3 क्वेश्चन में ऐसा करोगे ना, then you will not required to do that. ठीक है, right? And then stoichiometric coefficient will reveal the relationship between number of moles. Stoichiometric coefficient will reveal the relationship between number of moles which can be used through unitary method, which can be used by unitary method to predict the desired amount, right? तो ये चीजें अपने को याद रखनी है. अगर इतना पता लग गया तो उसके बाद वी कैन डू एनीथिंग. सबसे पहले मास मास रिलेशनशिप करते हैं और मेक श्योर दैट कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो अपने को, उसकी जो रिएक्शन है ना वो बैलेंस होनी चाहिए. बात समझ में आ रही है? तो उसकी रिएक्शन क्या होनी चाहिए? कैन यू एक्सप्लेन दैट लास्ट पॉइंट? हाँ, कौन सा वाला? लास्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट? कौन सा? आवाज नहीं आ रही तेरी. Sir, last point. Can you explain that? Stoichiometric coefficient will reveal the relationship between number of moles, which can be used by unitary method. It is saying that जो stoichiometric coefficient होता है ना, वो तुमको रिलेशन देगा नंबर ऑफ मोल्स के बीच में. ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स के बीच में जैसे रिलेशन आ गया तो तुम उसको यूनिटरी मेथड यूज करके काम कर सकते हो, आगे से नए नए नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो. गेटिंग इट?
अरे यही बोला था ना जो भी तुमने बोला, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के बीच में रिलेशन होता है ना। क्यों डाला आपने वो नहीं समझा। बिल्कुल, अरे यूनिटरी मेथड से ही तो सारा कैलकुलेट करते हो ना। यूनिटरी मेथड का मतलब क्या होगा, 2 मोल 1 मोल दे रहे हो, 4 मोल कितने मोल देंगे, ये यूनिटरी मेथड होता है। हाँ सर। है ना, वही तो यूज करते हैं ना। ओके सर। हाँ, shall I rub this now? Guys, shall I rub this? Yes, sir. Yes, Yeah. sir. अब मेरी बात सुनो, पहले मास मास रिलेशनशिप खेलते हैं ना। ओके, एक क्वेश्चन है जिसमें KClO3 सॉलिड डिसोशिएट कर रहा है to give KCl प्लस ऑक्सीजन गैस, KCl सॉलिड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि उसको ये पता करना है कि 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने ग्राम KClO3 से आएगी। क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या है, 96 ग्राम कितने ग्राम KClO3 से आएगी। तो अगर तुमको कोई भी केमिकल रिएक्शन दे रखी है, तो व्हाट द फर्स्ट स्टेप यू विल चेक ओवर दैट, if it's balanced or not. if it is like balanced or not. Just tell me whether it is balanced or not. No, sir, it's not Not. balanced. It is not Not balanced, right? So अच्छा, one second. Potassium, chlorine. Very good. ऑक्सीजन कितना है? 3। 3, बाहर 3 है, इधर बाहर कितना? 2। 2. हाँ, तो तो क्या करूं? KClO3 के आगे 2 एंड O2 के आगे 3, KCl के आगे 2। सुनो 3/2 कर दो। इतना Yes, क्यों sir. सोचना? Right. What should I can do? I can just multiply it with 3/2. तो अगर ऐसा किया या फिर तुम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो तो तुम्हारा वाला ही मान लेगा। 2 KClO3 सॉलिड gives 2 KCl plus CO2 गैस, दिस सॉलिड। अब मास रिलेशनशिप यूज करना है। वंश मैं क्या रिपीट करूं बेटा, देखो मुझे ना बैलेंस करनी है रिएक्शन, ठीक है। और जो पहले रिएक्शन दे रखी थी दैट इज दिस वन। अब बैलेंस करने के तो तुम्हारे पास कुछ ही तरीके हैं, या तो कॉमन सेंस लगा लो जो हमने अभी लगाई, पोटेशियम एक, क्लोरीन एक, पोटेशियम एक, क्लोरीन एक, डन। 3 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो उसको 3 करना है तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास आ जाएगा KClO3 सॉलिड गिव्स KCl सॉलिड प्लस 2 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 ऑक्सीजन चाहिए थे, 3 ऑक्सीजन आ गए, कोई दिक्कत। या फिर हाँ, उसके बाद क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर भी दिया तो आ जाएगा 2 KClO3 सॉलिड गिव्स 2 KCl प्लस 3 O2 गैस। एग्रीड? एग्रीड? यस सर। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, मास रिलेशनशिप खेलना है इसके अंदर। यार मास कितना है KClO3 का? 1 What is the mass of 2.5 39 plus 35.5 plus what is that, 48, right? How much I'll get? 122.5. 102.5. Are you sure? पक्का? Yes sir. 8 9 7 7 5 12। हाँ Yes, sir. सही है सर, हाँ, सही है। हाँ बेटा देख लिया। बेटा क्या बताओ, 1 मोल कितना ग्राम है? 122.5। तो यहाँ पे कितने ग्राम यूज हो रहे हैं? Sir, 2 moles. 2 moles. कितने ग्राम? वेट मास 245 grams. 245. 45 ग्राम।
ठीक है, 245 ग्राम में कितना ग्राम है KCl दिया? KCl 39 प्लस 35.5 149. 149। KCl का मास कितना होता है? नहीं सर, मैं ट्वाइस ऑफ KCl का मास बोल रहा था. ओके 74.5 हो गया, करेक्ट, इंटू 2 कितना हो गया? 149. 49। ठीक है, तो 149 ग्राम आ गया। तो 2 मोल, 2 मोल और 3 मोल देते हैं। 245 ग्राम ने 149 ग्राम दिया, और कितना ग्राम था? 96. 96 सर. डन। अरे भाई, तो आंसर ही आ गया, बताओ यार। 96 ग्राम कितने ग्राम JCl से आएगा डायरेक्टली? 245. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes sir. Yes, sir. अच्छा, चलो इसको हटाओ। हाँ sir. Yes sir. Yes, sir. सर एक मिनट प्लीज. ओके, हाँ सर हो गया. ओके। सर 2 मिनट. डन सर. ओके, ओके, कहाँ थे हम? एक क्वेश्चन लिखो। KMNO4, राइट, हीट करने पे लेट्स से फील नहीं आया, रुको। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डन ऑलरेडी, लाइक मास रिलेशनशिप करता। Listen, let's say I am reacting NaOH with H3PO4 such that I'll be getting Na3PO4 and water. ठीक है, ये aqueous और ये लिक्विड, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ये Yes, पूछा sir. है, हाँ सर। क्वेश्चन ये पूछा है कि 100 ना 200 ग्राम से 200 ग्राम NaOH में से कितना ग्राम Na3PO4 बन सकता है? सबसे पहले रिएक्शन में क्या करो? सर बैलेंस करेंगे. Balance. करो बैलेंस करो, उसके बाद अक्ल लगाओगे, राइट, मास वाला।
सर हमें निकालना क्या था, फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना। मास ऑफ Na3PO4 फिर हो गया हो गया सब ना? पॉइंट में है और चलेगा, बताओ कितना है? सर। अच्छा मैंने वो फ्रैक्शन में ही छोड़ा है अभी, तो 164 इंटू 5/3। एक मिनट पॉइंट में करती हूँ। 164 into इंटू 5/3. 5/3। Okay. $54.6 grams. क्या बात करें? 5/3 कैसे 54 नहीं पॉइंट सॉरी, सिक्स ग्राम into होगा? into 164 5 into 5. into 5. हाँ बस वही हाँ 54.6 इंटू 5। एंड हाँ कितना हो? 273. हाँ मुझे भी 273 अप्रोक्सीमेटली 273 हाँ है। 273.5 आया. 0.69. ओए आंसर आया सबको? हाँ सर। सर वाटर का अच्छा अभी करा जैसे सबसे मास पहले निकालना है सर। नहीं चाहिए, वाटर का नहीं, Na3PO4 का चाहिए भाई. बेटा Na3PO4 का चाहिए. अभी सुनो, बैलेंस कैसे किया? 3 सोडियम पहले है. मैंने 3 किया। NaOH plus H3PO4 gives Na3PO4 plus 3H2O. हाँ 3 H plus 3 OH minus 3 water. Agree? Yes, We sir. have to Yes, get sir. balance. Very good. Now अब ना mass relationship खेलते हैं. Okay. NaOH 40 ग्राम होता है, करेक्ट? हाँ Yes, sir. 3 है तो 3 मतलब 120 120 ग्राम grams, sir. NaOH. हाँ वही 120 ग्राम NaOH. Yes. सर कैसे हो? How many grams? 164 How much? 164। Yes, sir. I calculated 164. that. 164. हाँ Correct? Yes, sir. Very good. 164 grams. Now the thing is, if 120 grams gives 164 grams, then 1 gram will be giving 164 by 3. Oh, 164 by? 164 by 120. 164 by 120. That is given the 1 gram. So by 200 grams. Multiplied Into by 200. 200. Done. Yes sir। So I'll be getting 3, I'll be getting 5. Obviously 40 divided by 40, correct? So whatever we got over here was correct only. It'll be like 50, what is that? 54 point? 54.6 into 5। 54.66. Okay. So I'll be getting approximately how much? 2? 273। 273. Understood? लेकिन कैसे होगा? NaOH Understood. का तो हम लोग को मास दिया हुआ है ना 200 ग्राम, तो 3 मोल्स का हो गया हाँ 600 बेटा, ग्राम सर। बेटा इसका दे रखा है ना मास NaOH का 40 ग्राम होता है ना 1 मोल का. सर तो 1 200 मोल का ग्राम कितना दिया है ग्राम ना? होता है? हाँ बेटा, बट इस रिलेशन के हिसाब से 3 मोल 1 मोल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ सर। बेटा इस, हाँ तो 1 मोल कितना हुआ? 40 ग्राम हुआ ना? हाँ तो 3 मोल कितना हुआ? 120। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, 120 ग्राम में से कितना आ रहा है? 164 ग्राम आ रहा है. हाँ एग्री? तो उसके हिसाब से यूनिट मेथड लगा दिया. हमको बोला, हमसे पूछा कि 200 ग्राम में से कितना आएगा. ओके सर। ठीक है अर्षद? ठीक है, यस सर। वेरी गुड. देखो 200 ग्राम दिया तो इंटू 3 600 ग्राम्स होगा। दोबारा. वो NaOH का मास दिया हुआ है ना ऑलरेडी,
वो 200 हाँ ग्राम देखो कर। देखो। हाँ हाँ तो मेरे को पूछा लगा अगर 200 ग्राम NaOH का मास है तो 200 ग्राम में से कितने ग्राम Na3PO4 बनेगा, ये क्वेश्चन था। क्या सर? अरे 200 ग्राम NaOH में से कितना ग्राम Na3PO4 बनेगा, दैट वाज द क्वेश्चन राइट। फिर वो क्वेश्चन पता है पूछा गया था। सर 200 ग्राम NaOH कितना ग्राम Na3PO4 बनाता है? हाँ तो हमने क्या किया, 120 ग्राम से अगर इतना ग्राम बन रहा है तो 1 ग्राम से इतना बनेगा, 200 ग्राम से इतना बनेगा, निकल गया ना आंसर, क्या दिक्कत है उसमें। ओके सर। समझा? यस सर। वेरी गुड। चलो नाउ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। ओके अभी तक सब कुछ क्लियर? नेक्स्ट Yes, थिंग इज sir. आई हैव टू कैलकुलेट मास एक और वर्सेस क्वेश्चन कर वॉल्यूम। हाँ बेटा। सर। मास हाँ मास मास का मास का क्या? एक और क्वेश्चन करा दो। एक और क्वेश्चन कराऊं? हाँ चलो सर। करो। सर यस सर आपने वो जो थिंग्स टू रिमेम्बर दिया था वो मास और मास वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है? सबके लिए सेम है, इवन तो सारी कैलकुलेशन के लिए ये काम आएगा, ठीक है? ओके फ्यूचर में सर। भी। ओके व्हाट वी विल डू हियर, ठीक है सुन लो। सोडियम फॉस्फेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड गिव सोडियम क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है? चलो मुझे ये बताओ 380 ग्राम MgCl2 में से कितने ग्राम Mg3PO4 बनेंगे मास मास रिलेशनशिप यूज करके? Mg3PO4 whole twice, no. It will be सर Mg3PO4 whole 380 twice. ग्राम्स को किसका कौन सा कंपाउंड का मास है? 380 ग्राम हाँ आपने जो दिया। MgCl2 का नीचे लिखा ना उसका। सर मैग्नीशियम 24 होता है ना? हाँ बेटा 24 होता है। सर आंसर आ गया। वेरी गुड।
Let them wait for 2 minutes. बेटा आंसर आ गया सबका? सर 1 मिनट. ओके. रिएक्शन बैलेंस किया सबसे पहले? Yes, sir. गुड. Yes, sir. आ गया आंसर. वेरी गुड. तो बचपन में कौन सा मेथड सिखाया है बैलेंसिंग का? क्या sir? बचपन में कौन सा मेथड बताया बैलेंसिंग का? हाँ वही हिट एंड ट्रायल दिखाया ना? हाँ सर, हिट एंड ट्रायल. Yes, sir. Hit and trial. सही है. हो गया सर. हाँ. कांट हो गया ना? हाँ सर. 306.8 आया. 306.8 आंसर आया. विल चेक इट आउट. पहले बैलेंस करते हैं. हाँ, रिएक्शन देखो. 3 मैग्नीशियम 2 फॉस्फेट. तो 3 मैग्नीशियम 2 फॉस्फेट. एग्रीड? Yes, sir. Sir, 6 NaCl हो जाएगा. हाँ 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 हाँ. हो गया बैलेंस. Na+6 Cl-6 आ गया. करेक्ट? Yes, sir. वेरी गुड. नाउ अंडरस्टैंड. 3 1 दे रहा है. 3 मोल 1 मोल दे रहा है. करेक्ट? Yes, sir. तो बात बताओ इसका मास कितना होगा? 95 ग्राम. Yes, sir. मॉलिक्यूलर मास. अब 3 into 95 कितना हुआ? 285, sir. हाँ 285. 285. 285 ग्राम्स में कितने ग्राम्स दिए? Sir, 190. कैसे 190 बेटा? तो मुझे 262 आ रहा है. हाँ सर 24 into 262 है. सर हाँ 262. सर, मुझे भी 262. हाँ, 262. हाँ हाँ sir, 190 plus 72. Sorry, 262 है. हाँ. हाँ तो कितना आ जाएगा? 262 ना? करेक्ट Yes, है. sir. Yes, sir. तो एक बार बताओ अगर 285 में 262 ग्राम्स दिए तो 380 ग्राम कितने ग्राम देगा? Sir, 262 by 285 into 380. हाँ 262 डिवाइड बाय 285 इंटू 380 कितना? 95 से जाएगा बेटा. ये आराम से जाएगा. ये किसमें गया? 95 पे 3 पे जाएगा. करेक्ट? और ये 4 पे जाएगा. करेक्ट? हाँ. हाँ. So 349.3. Yes, sir. मुझे भी सेम आया. हाँ sir. Sir, 3333 रहेगा. वो recurring हो हाँ जाएगा. चलेगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं. You understood that, right? हाँ. Yes, सबका आया? sir. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Very good, very good. Oh wow, very good. अभी चलें आगे. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Next lecture you have at 4:30, right? हाँ. Hmm. Okay. Now, what we have? Mass volume relationship. What is that? Mass volume relationship. Right. चलो उसको करते हैं अभी.
लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड जब डिकम्पोज होता है, then I have calcium oxide solid and it is giving me carbon dioxide gas. Agree? Yes, sir. Yes, sir. Now understand that हम ये मानते हैं कि यार ये रिएक्शन ना NTP पे हो रहा है. किस पे हो रहा है? Normal temperature pressure. Normal temperature and pressure, and that is equal to how much? 24 Pressure liter. becomes 180 and temperature becomes Sir, 273 273 Kelvin. Kelvin. है ना? Yes, हाँ sir. sir. Now listen, मुझको ये पता है कि 100 ग्राम्स डिकम्पोज होके 1 मोल, क्या कहते हैं 1 मोल डिकम्पोज होके 1 मोल देता है एंड 1 मोल देता है. एग्रीड? Yes, sir. एग्रीड. नाउ अंडरस्टैंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो यार 1 मोल गैस का एनटीपी पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4 22.4 liter. 22.4 4. 22.4 लीटर. एग्रीड? तो एक Yes, sir. रिलेशन आ गया कि यार 1 मोल मतलब 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर मेरे को 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देगा. कोई दिक्कत इसके अंदर? नहीं. Sir. दिस कैलकुलेशन No. टेक्स प्लेस एट एनटीपी. करेक्ट? Yes, sir. अगर each चीज एसटीपी पे होती तो 100 ग्राम एसटीपी 22.7. 22.7 liter. एग्जैक्टली 22.7 लीटर. मानते हो ये सब? हाँ. Sir. बस अपने को ना इसके साथ खेलना, वॉल्यूम के साथ खेलना है और मास के साथ खेलना है. मास और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप खेलना है. गेटिंग इट? सिंपल है ना, कोई टफ नहीं है. हाँ. हाँ, कोई नंबर ऑफ मोल्स की बात है. तुमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स स्टडी की, तो मुझे पता है 1 मोल मतलब 100 ग्राम्स में 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का दिया मतलब 20.4 लीटर दिया. खत्म हो जाती है बात. सर एक बार वापस समझाओ ना. हाँ बेटा समझाता हूँ. ओके, आई सेड कि अगर मैंने ये केमिकल रिएक्शन लिखा तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड gives 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है? नाउ अंडरस्टैंड दैट मैंने कहा मुझे ना मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में खेलना है, तो मैंने क्या किया, 1 मोल और 1 मोल देता है, तो आई हैव 100 ग्राम्स, राइट? तो 1 मोल मतलब 100 ग्राम्स हुआ. 1 मोल ने अगर 1 मोल CO2 दिया तो 1 मोल CO2 इज 22.4 लीटर्स एट एनटीपी. तो 1 मोल मतलब 100 ग्राम्स. 100 ग्राम्स ये. हाँ बेटा. सर कैसे हेलो? 2.4 लीटर से? हिंदी में बोल दोबारा. सर 22.4 लीटर से करके कैसे पता चला? बेटा एक बात बता, ये क्या है? ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है. और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 लीटर. हाँ, तो कितने मोल बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड? 1. हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर. चलो 1 मोल, हाँ 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो 100 ग्राम से 22.4 लीटर बन रहा होगा एनटीपी पे, और 100 ग्राम से एसटीपी पे 22.7 लीटर बन रहा होगा. तो ये रिलेशन आ गया मास और वॉल्यूम का. इसको यूज करके हम बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं. आगे चलें. Yes, sir. Yes, sir. 2 मिनट. ओके. सर आपने जो पीडीएफ भेजी थी मोल कॉन्सेप्ट की, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4, तो हाँ. लेक्चर 3 में एनटीपी और एसटीपी की तो बहुत अलग वैल्यूज दी हुई हैं. एक्चुअली दोनों की सेम ही दी हुई है 22.4. हाँ, दोनों की सेम थी. नहीं, गलत दे रखा. गलत दे रखा है. हाँ सर, ये वाली फॉलो करनी है ना. हाँ, ये वाली फॉलो करनी है.
उसके अलावा कुछ फॉलो नहीं करना। ओके करेंगे? सर। हाँ डन। यस सर। हाँ ओके चलो सर अब दिस नाउ say yes, so God say yes. yes यस सर। ओके क्वेश्चन दे रहा हूँ then we'll move ahead, ठीक है guys? Yes, sir. yes sir yes sir Yes. Okay, यस sir. सर। Okay. Wait. Wait. अमोनियम डाइक्रोमेट डिकम्पोज हो रहा है to give Cr2O3 plus 8 H2O liquid plus into gas. I'll make it like 4H2O liquid और टेम्परेचर ले लो थोड़ा ज्यादा, नहीं लिक्विड लो इसको लो गैस, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि how many grams, sorry this is solid, how many grams of what should be the weight of सर yeah एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करोगे, स्क्रीन ब्लर है। पूरी ब्लर है? थोड़ी नहीं सर, मुझे तो क्लियर आ रही है। थोड़ा ब्लर है। सर मुझे भी क्लियर है। वन सेकेंड तो दोबारा बोल देता हूँ। अमोनियम कार्बोनेट है, डाइकार्बोनेट है, ठीक है। अमोनियम कार्बोनेट कह रहा हूँ, अमोनियम डाइक्रोमेट है। अमोनियम डाइक्रोमेट हीट करने पे Cr2O3 बनाता है, क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है, प्लस 4H2O लिक्विड बनाता है, प्लस नाइट्रोजन गैस निकलता है। So I'm having a nitrogen gas over there, ठीक है। Now क्वेश्चन ये है कि NTP पे 44.8 लीटर, NTP पे 44.8 लीटर कितने ग्राम अमोनियम डाइक्रोमेट से बनेंगे? 1 second, I'll just come. सर आप सीआर का मास बता सकते हो क्या? अभी ठीक है, 52 सर कितना? 52। ओके सर। हाँ सर 44.8 तो वो जो भी है लेफ्ट साइड में उसका 2 मोल होगा ना? हाँ बेटा, वो जो भी है ना वो नाइट्रोजन गैस है, ढक्कन। सर 516 ग्राम आ रहा है। हाँ कितना आ रहा है सर? 516 ग्राम्स। हाउ? अच्छा 516 ग्राम। सर 504 आ रहा है मुझे। चलो चेक करते हैं। हाँ
अरे हर्षित N2 क्या है सर? ओके लिसन, ये बैलेंस्ड है. हाँ सर 504 ही हो गए, स्मॉल एरर था. ओके, ये बैलेंस्ड है. हाँ Sir, I Right, also got everyone. 504. एग्जैक्टली Yes, sir. करेक्ट. नाउ द थिंग इज, इतना समझ में आता है कि यार अगर 1 मोल है तो 1 मोल दे रही है, राइट? यस राइट, तो वेरी गुड. 1 मोल का मतलब कितना ml हो गया एसटीपी पे, एनटीपी पे? 22.4 सर. 22.4 लीटर हो गया, करेक्ट? तो Yes, sir. 22.4 लीटर कितना ग्राम दे रही है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इट? सर 252 आता है. 252 है ना, करेक्ट? यस सर सर. कैसे है 252? अभी क्रोमियम का कितना है? 52 यूज किया ना. यस सर. मैग्नीज 56 55, ठीक है. क्रोमियम 52 यूज किया तुमने. एक काम करो, क्रोमियम को 55 यूज करो. कितना? बस ठीक है, छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे तो सर उससे भी हो गया ना. हाँ 5 से भी हो रहा है ना. 252 ले लो. कितना लिया क्रोमियम का आपने? 52 ग्राम दिया ना. यस सर 52 लिया. अब 52 के अंदर अब मुझे बताओ ऑक्सीजन कितना है? सर 112. 112 प्लस क्रोमियम कितना आ जाएगा? 104 यस सर. प्लस अमोनियम कितना हो जाएगा? 36. 18 into 2. 4 18 ना, तो फिर 36 हो जाएगा, करेक्ट? तो टोटल कितना हुआ? 252. 252 सर. तो 252 ग्राम 22.4 लीटर से आ रहे हैं, करेक्ट? यस सर. यस तो सर. हमने क्या किया, 1 मोल नाइट्रोजन का 1 मोल ये बना रहा है, तो 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास ले लिया. 1 मोल नाइट्रोजन मतलब 22.4 लीटर एनटीपी पे. तो हम ये कह सकते हैं कि 22.4 लीटर से इतना ग्राम आ रहा है. गेटिंग इट? अब मुझे क्या होता है, मुझे कितनी लीटर के लिए चाहिए? 44.8 44.8 लीटर के लिए मतलब तो into कितना आ 2. जाएगा? 2 हो जाएगा सर. 504. एग्री? यस Yes सर. sir. डन एवरीवन? यस सर. Yes, Yes sir. sir. Sure. Okay. Okay. Now listen. Shall I have this? Yes sir. यस सर. Yes, sir. Okay. Last question I'll ask in this. Then we'll move to volume relationship. ठीक है? हाँ. Tomorrow, limiting reagent, PAOC, limiting reagent we'll do. And after that, PAOC, then your chapter will get over. ओके सर. Okay sir. See, empirical formula, molecular formula questions are there. Have you checked those questions? Yes sir. Yes, sir. Okay. Monday evening we do have a doubt class, right? Just make sure that you will finish all the assignment by Sunday, so that on Monday evening we can have a doubt session with you, right? Yes सर sir. जो आपने अभी रिसेंटली भेजे थे उन्हीं के ना, जो हाँ, असाइनमेंट्स अभी भेजे थे. हाँ. ओके सर. Okay. लास्ट क्लास डाउट में कौन कौन था? सारे थे ना मोस्ट में, कुछ लोग थे. They have asked lot of doubts that time, right? चलो अभी आ जाओ उसमें. मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में विल डू वॉल्यूम रिलेशनशिप. ठीक है, मास वॉल्यूम बहुत हो गया, वॉल्यूम करते हैं. ठीक है, आई वांट टू डू वन क्वेश्चन ऑन मास वॉल्यूम. नहीं सर, वॉल्यूम कर लेते हैं. अच्छा, वॉल्यूम कर लेते हैं. ठीक है, करो ना सर मास वॉल्यूम. एक और क्वेश्चन करो ना सर. एक काम करता हूँ,
मैं करके नहीं देता, मैं तुम कर लो, है ना। लो ओके, कैल्शियम अजाइड CaN3 whole twice undergo heating to form calcium plus 3 moles of nitrogen gas. Calcium solid, right? Getting it? Now the question they have asked this, that okay, they are saying that if they are having 201.6 liters of N2 gas, then how much weight of calcium azide would have been there, which can be dissociated to form that much amount of weight, or that many amount of volume, and the reaction takes place as STP, sorry, NTP. इसे करो सॉल्व। जल्दी करो, Done, वॉल्यूम sir. वॉल्यूम करना। हाँ, हो गया, हो गया। वेरी गुड। सर नहीं आ रहा सर, क्या करना है? तू बताना क्या करेंगे। डन सर। मुझे Done, बता sir. ये वॉल्यूम कितना आ रहा है नाइट्रोजन का बाहर। हाँ बेटा, सर कैसे करना है? वॉल्यूम कितना आ रहा है नाइट्रोजन का बाहर। बेटा मैं क्या पूछ रहा हूँ तुझसे, वॉल्यूम कितना आ रहा है नाइट्रोजन का बाहर, कितने सर वो मोल है नाइट्रोजन के। हर्षित, कितने मोल्स नाइट्रोजन के हैं। राइट साइड में। तेरे को केमिकल रिएक्शन, हाँ नहीं सर। लेफ्ट साइड में घूमो, ऑब्वियसली नाइट्रोजन गैस। कितने मोल्स है नाइट्रोजन गैस के। सर हो गया 3 है ना, तो कितना वॉल्यूम हो गया। एसटीपी एनटीपी कितना वॉल्यूम हो गया 3 का। 67 बेटा हाँ सर। अच्छा, 3 मोल का कितना वॉल्यूम हो गया एनटीपी पे। क्या सर? नाइट्रोजन 3 मोल नाइट्रोजन का कितना वॉल्यूम हो गया एनटीपी पे। 201.6 लीटर्स। कैसे भाई साहब, 1 मोल कितना गैस, 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम होता है। 22.4 अगर 3 मोल का कितना हुआ into 3। तुमने क्या बोला अभी मेरे को 201.6 क्यों बोला। सर क्योंकि वो दिया है ना इसलिए। हाँ तो वो 3 ही है, किसने बोला है। रिलेशन तेरे को ऊपर से मिलेगा ना, ये तो मैंने दे रखा है, इसमें से कितना आएगा। ये 3 ही है, किसने बोला। पहला तो रिलेशन ऊपर से निकालेगा ना। हाँ सर। हाँ तो मुझे बता कितने लीटर हो गए। 67 Yeah, shall I say that 3 into 22.4 liters, 3 मोल एक मॉलिक्यूलर मास देता है, तो 3 into 22.4 लीटर्स ने कितना मास दिया। इसका मास कितना निकाला 40 into Yes, sir. 124. 124, that means 40 plus 84, correct, ये निकाला। Yes, sir. Yes, sir. 124 ग्राम, तो इतने लीटर्स 124 ग्राम दे रहे हैं, तो 201.6 लीटर्स कितने ग्राम देंगे। 124 डिवाइड बाय 3 into 22.4 into 201.6, एग्री। Yes, sir. यस सर 1 सेकेंड, जब इसको तुम डिवाइड करोगे तो Sir, कितना आएगा। into 3 हो जाएगा. 124 into 3. 372 Yes, sir. Answer Yes, 372 sir. आ गया. 372.
एग्री? Yes, sir. हर्षित कहाँ गया तू? हाँ सर, हाँ मतलब क्या हुआ, समझ में आया तेरे को? क्या गलती कर रहा था? समझा, कुछ तो समझा। कुछ तो नहीं समझा, गलती समझा जो कर रहा था। तूने रिलेशनशिप को एक्चुअल अमाउंट कैसे ले लिया? मैंने तेरे को कितनी बार बोला ये रिलेशनशिप है जो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के बीच में है, ये इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, ये इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप होगा ना, उसको इकट्ठे एक जैसे कैसे ले सकते हो? आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay, sir. now volume relationship. We start. Volume relationship. Now understand one thing. Volume relationship करने से पहले ना, what we'll do, we understand one thing. Yeah, very important. Volume relationship. सपोज करो एक बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है, उसमें मैंने ना थोड़ा सा लिक्विड ले लिया, और बहुत थोड़ा सा सॉलिड ले लिया। गेटिंग इट? नाउ इस पूरे कंटेनर के अंदर गैस मूव कर रही है। ऑब्वियसली कोई भी गैस होगी, गैस विल मूव इनसाइड द होल कंटेनर, राइट? नाउ पहली चीज समझो, अगर ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, so let's say that volume of gas is far greater than volume of solid and volume of liquid. Agree? Yes, sir. Yes, sir. गैस का वॉल्यूम हमेशा लिक्विड और सॉलिड के वॉल्यूम से ज्यादा होता है, राइट? Yes, sir. Understood. So let's say that what is the volume of the gas? Simply I can say that volume of container. V is nothing but volume of container. वो आप पूरा स्टार्टिंग से रिपीट कर सकते हो, इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ बेटा, अगर मेरे पास V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, म्यूट पे जाओ। उसके अंदर ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, तो द वॉल्यूम ऑफ गैस विच इज मूविंग इनसाइड द होल कंटेनर, ये जो वॉल्यूम है गैस का, ये सॉलिड के वॉल्यूम से और लिक्विड के वॉल्यूम से बहुत बड़ा है। मैं बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ गैस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू सॉलिड वॉल्यूम और लिक्विड वॉल्यूम। दूसरी चीज मैं ये बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में वो मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है? अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज सो नेग्लिजिबल कि आई कैन सिंपली से दैट जो कंटेनर का वॉल्यूम है दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। कोई इश्यू इसके अंदर? मतलब वॉल्यूम सिर्फ गैस ऑक्यूपाई करेगा, जहां पे गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, तो लिक्विड और सॉलिड की वॉल्यूम में नेग्लिजिबल मान लूंगा। जो भी वॉल्यूम कंटेनर की होगी वो किसकी होगी? किसकी होगी? गैस की, सर। वेरी गुड, बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। एक बात तो ये रही। दूसरी बात वॉल्यूम रिलेशनशिप करने से पहले, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? क्या सर? आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? सर PV is equal to nRT। एक बात बताओ, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स अमोनिया, सब गैसेस है। गेटिंग इट? अगर ये क्वेश्चन देखो ना मैं, तो मेरे को बहुत सही चीज समझ में आती है
कि 1 मोल नाइट्रोजन का 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ताकि 2 मोल अमोनिया आ जाए। एग्री? Yes, sir. दैट अगर 1 मोल नाइट्रोजन का है तो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा ताकि 2 मोल अमोनिया आ जाए। राइट? सपोज ये सारी रिएक्शन ना प्रेशर कांस्टेंट पे हो रही है और टेम्परेचर कांस्टेंट पे हो रही है। प्रेशर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब मेरी बात सुनना, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, एंड वी नो दैट PV is equal to nRT. It's a gas equation, ideal gas equation. जब मैंने प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, R तो ऑलरेडी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो shall I say that volume equal to N into RT by P, right? Yes, sir. तो यार ये सब कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ V is equal to K into N, या फिर V is directly proportional to N. Agreed? Yes, sir. मतलब अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। जो ऑपरेशन में नंबर ऑफ मोल्स पे लगा सकता हूँ वही ऑपरेशन में वॉल्यूम पे लगा सकता हूँ। Yes, sir. इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर 1 मोल 3 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है 2 मोल बनाने के लिए, तो अगर मैंने 1 लीटर ले लिया होता ना इसका नाइट्रोजन का, तो अगर 1 मोल 3 मोल के साथ लीटर रिएक्ट कर रहा है 3 तो 1 लीटर के साथ 2 लीटर देने के लिए 2 लीटर अमोनिया देगा। और 1 मोल 2 मोल बना रहा है तो 1 लीटर कितने बनाएगा? 2 लीटर अमोनिया। 2 मोल बना रहा है तो 1 लीटर कितने बनाएगा? 2 तो जैसे ही मैं नंबर ऑफ मोल्स के साथ खेल रहा हूँ वैसे ही आई कैन प्ले विद वॉल्यूम इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। दैट्स ऑल ओवर, राइट? Yes, sir. Understood? Yes, sir. Now shall I drop this? Yes, sir. Sir, 2 minutes. Yeah. हो गया सर। वेरी गुड। अब एक बात बताऊं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं एवरीवन, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दैट। ये आवाज मत करो, बहुत तेज आ रही है, म्यूट पे चले जाओ। गुरु सर एक डिस्टर्ब कर 2 मिनट, अनाउंसमेंट करना था। हाँ करो करो ना। Guys, good evening. The physics lecture will be not conducted due to the connectivity issue. Directly maths lecture will start by 6 o'clock. Got it? Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Yeah. मतलब समझे इसका मतलब? हाँ सर, आप एक्सटेंड कर सकते अगर आपको चाहिए। नहीं बेटा, मेरी क्लास है 4:30 बजे से। हाँ मत बोलो। Our class at 4:30, right? With 12th class, हाँ ठीक है। Anyways, इधर देखो, इधर इम्पोर्टेंट चीज है। कोई ऐसी रिएक्शन बताओ जिसमें गैसेस ही गैसेस हो। HCl formation. So cheap one, ठीक है। H2 gas plus Cl2 gas gives 2HCl gas, right? अच्छा सपोज करो the reaction takes place, फील नहीं आ रही, छोड़ो।
तो कार्बन नहीं मोनोऑक्साइड और करना ऑक्सीजन। चाहिए। सर ना, उसे भी अमोनिया नहीं आएगी। वाली रिएक्शन ले सकते हैं। नहीं, वो भी फील नहीं आएगी मुझे ना कुछ और। अच्छा सुनो, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन बना लेते हैं, वो तो कर ही सकते हैं ना। सुनो, 2A gas plus B solid plus C liquid gives 3B gas plus 2F gas plus 6E solid। समझ रहे हो क्वेश्चन की ग्रेविटी? हाँ। समझ रहे हो? हाँ, मुझे एक बात बताओ कि अगर ये प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, सर वो I want 2F to know one गैस है thing ना? कि हाँ 3D भी गैस है, 2F भी गैस है एंड 6E सॉलिड है ना, बड़ा सा लिख देता हूँ उधर। 2A गैस प्लस B सॉलिड प्लस C लिक्विड gives 3D gas plus 2F gas plus 6E solid, right? Now just tell me one thing, रिलेशनशिप के साथ खेलते हैं, ठीक है? तो एक बात बताओ, क्या सॉलिड लिक्विड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है कंटेनर के अंदर? कंटेनर के अंदर वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है? नेग्लिजिबल। सर सिर्फ गैस ही है। गैस ही ऑक्यूपाई करता है ना। सपोज क्वेश्चन है कि इनिशियली ना कंटेनर का जो वॉल्यूम था दैट वाज 5 लीटर। कितना वॉल्यूम था एट टाइम t 5 इक्वल टू 0? लीटर। टाइम t इक्वल टू 0 का मतलब है सिर्फ जब मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? सर कैन यू रिपीट? आई रिपीट द क्वेश्चन। मेरे पास ये रिएक्शन है, मैंने ना टाइम t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया, मतलब जस्ट a से स्टार्ट किया। a के 5 लीटर रखे। कितने लीटर रखे बेटा? 5 लीटर। 5 लीटर। मुझे ना जब रिएक्शन खत्म हुई, मुझे फाइनल वॉल्यूम चाहिए। किसका? कंटेनर का। सिंपल। यस सर। वेरी गुड। बताओ, तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकेंड है। सर 5 लीटर होगा ना? इनिशियल 5 लीटर है, फाइनल कितना हुआ? सर तो गैस का ही होता है ना वॉल्यूम कंटेनर का। हाँ, तो एक गैस खत्म हो जाएगी ना, तो कुछ तो बनेगा। प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट। रिएक्शन खत्म तो होना ना। 12 नहीं, सोच थोड़ा बहुत पास हो। सर आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? या एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, तो जब मुझे 12 A गैस B सॉलिड C लिक्विड था, रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। मैंने 5 लीटर A का लिया। कंटेनर का वॉल्यूम कितना था? 5 लीटर। तो मुझे फाइनल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर चाहिए। तो मुझे सर 12.5 12.5 आएगा। 12.5 लीटर्स। 7.5। 12.5। सर 7.5 होगा ना? कितना होगा? 7.5। क्यों बेटा? तूने सर 2 मोल गैस लिया बेटा? F गैस लिया? F गैस लिया हर्षद? F गैस? हर्षद, अरे यार 3D गैस ले लिया, F गैस लिया क्या? नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? अब बता कितना आएगा? हाँ सॉरी, वो 12.5 ही है। सुनो हाँ भाई। सर। हाँ सर 12.5 आ रहा है। हाँ आएगा, उतना ही आएगा। सुनो, जिस तरीके से मैं नंबर ऑफ मोल्स के साथ डील कर सकता हूँ, वही उसी तरीके से वॉल्यूम के साथ डील कर सकता है। इतना मानते हो? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अगर 2 मोल 3 मोल दे रहे हैं, तो 5 लीटर कितने लीटर्स देंगे? जब सर 3/2 into 5। एग्जैक्टली, जब 2 मोल 3 मोल दे रहे हैं, तो 2 लीटर 3 लीटर देंगे। जैसे नंबर ऑफ मोल्स के साथ डील कर रहा हूं, वैसे वॉल्यूम के साथ कर सकता हूँ। तो अगर 2 लीटर 3 लीटर देंगे, तो 5 लीटर कितने देंगे? 3/2 into 5। वेरी गुड। अच्छा, 2 लीटर 2 लीटर देते हैं, तो 5 लीटर 5 देंगे। 5 लीटर पाँच देंगे। लीटर, तो ये हो जाएगा 7.5 लीटर और ये हो जाएगा 5 लीटर।
टोटल वॉल्यूम कितना है? 12.5 सर। और मैं ये चीज सॉलिड, लिक्विड और सॉलिड के लिए नहीं सब इग्नोर कर सकता करना है क्योंकि सर। क्योंकि इनकी जो वॉल्यूम है वो क्या होती है कंटेनर के अंदर? नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल। एग्जैक्टली, अंडरस्टूड सर यस वेरी सर। गुड। चलो टेक केयर, फाइन, राइट।